Hello and welcome at Exam Zone 24/7. Our topic today, as you see, is Day NRLM. It is quoted that this is for SBI CBO. But it is also useful for GBO and RRB scale 2 and 3 exams. Okay. See, one thing you should keep in mind that whenever there is NRLM, you just remind SHG, self-help groups. See, only few things are important for this, but we will be discussing all of the aspects related to NRLM. This session is especially for CBO exam. Here is about me. Hope all of you know about me, my qualifications and this. If you are a banking aspirant, there is no portal who can beat Exam Zone 24/7, especially for banking aspirants. And if you are willing to enroll, you may text over WhatsApp and you will be added in paid group. Our website is under development and all contents are not there, but for the time being, you may join our courses. Further, you may scan this and you may join the Telegram channel or you may join the WhatsApp group. This is for CBO exam especially, and this is for all exams as Exam Zone 24/7. Now we will discuss about the NRLM. See, NRLM is National Rural Livelihood Mission. Okay, let me zoom. About the scheme, Ministry of Rural Development launched the NRLM on 1st April 2013. मतलब ये स्कीम लॉन्च कभी हुई थी 1st of April 2013. ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर SBI CBO का एग्जाम या GBO का भी एग्जाम आप दे रहे हो तो जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं these questions are basically fact based questions and you just need to know what are the dates, amounts and anything which is quantifying any facts in the directions or others. This is important to learn by heart. Further, as this is a part of RBI circular and every time every year RBI issues of fresh directions regarding this, whether they may be similar as quoted in previous year or mentioned or running in the previous year, but every year, especially on April 1st, and some of them may be issued earlier, quoting that they may be effective from other date. So these things you need to know. Further, why it was Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. It was restructured, मतलब renamed, okay, or NRLM replaced
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. Okay, see what was behind Gram Swarojgar Yojana means creating employment and livelihood. The same theme goes for NRLM also. Okay, this is basically focuses on poverty reduction. Okay, and the one of the most important thing you need to know that ministry, this which ministry, Ministry of Rural Development, MORD, okay, is also implementing startup village entrepreneurship program, okay, through NRLM. Means NRLM scheme के अंदर ही SVEP is also there. This is a sub scheme. Then question may be asked that which of the following is a sub scheme of NRLM. See, whenever you are studying any circular or thing, I always advise that see line by line, word by word. Okay. Now, these two facts are much important for your CBO and GBO exam because they contain the facts and quantifications. What is day NRLM would wait? What is the day in this? D means Deen Dayal, A means Antyodaya, Y means Yojana. Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, Day NRLM, would ensure adequate coverage of vulnerable sections. Vulnerable section actually you may consider it as a weaker section, like weaker section as in PSL guidelines. Okay. Now, such that 50% of beneficiaries, ये पूछा जा सकता है. In an NRLM, we have already discussed credit facility to minority communities. Under that discussion, we have already discussed that what will be the percentage of various categories in government sponsored schemes. Here also you need to know that 50% of the loans will go to SC and ST. Okay, 15% will go to minorities. Okay, and 3% to persons with disability. Okay, इस तरह का रिजर्वेशन क्राइटेरिया है. इस तरह का आपको देखना है और दिस में बी आस्क्ड इन द एग्जाम बिकॉज दीज आर क्वांटिफाइड फैक्ट्स. हमेशा याद रखना, if fact is quantified then this is important for exam. Okay, the second is the very important finding pattern, already पूछा जा चुका है. Central and state government share in 60:40 ratio. Okay, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देता है एक्सपेंसेस इसके जो भी लगते हैं लोन, और कंट्रीब्यूशन फंडिंग का कंट्रीब्यूशन जो होता है, and state government gives 40. Okay, if nothing is mentioned then the answer will be 60-40. If it is the northeast then central government will give 90% of the funding and 10% will state government. If it is a union territory, मतलब वो state है ही नहीं, तो then 100% funding will be by central government. देखो, for purpose of SBI CBO it is over NRLM. इससे ज्यादा एक चीज और पूछ सकती है, कितने डोजेज होते हैं एसएचजी में, मेंबर्स कितने होते हैं, वो हम आगे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप यू हैव ऑलरेडी वेंट थ्रू with me, and we will be moving towards our next discussion related to this only.
दिस इज आल्सो सी, हियर इज द फैक्ट इज क्वांटिफाइड, क्वांटिफाइड मीन्स इसमें अमाउंट दिया हुआ है, ये पूछा गया है। देन डे एन आर एल एम, डे एन आर एल एम, इन डे एन आर एल एम what is the revolving fund amount? Revolving fund amount is 20,000 to 30,000 पर एस एच जी। अच्छा ये बताओ, ये रिवॉल्विंग फंड होता क्या है, ये थोड़ा सा समझो। ये है एक एस एच जी ग्रुप। एस एच जी ग्रुप 10 से 20 लेडीज महिलाएं अपना बनाती हैं, एस एच जी ग्रुप है। ये अभी नया नया बना हुआ है, ठीक है। ये बैंक, ये क्या करेंगी, अपने पंचसूत्रा को फॉलो करेंगी, मीटिंग करेंगी, और कुछ कुछ ये मेंबर्स अपनी सेविंग रखेंगे, ठीक है। ये बैंक में अकाउंट खोलेंगे। अब इनको क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए बैंक से। जब अच्छा लोन का एसएचजी, इससे कोई मतलब, जैसे ही कोई नया एसएचजी बनता है तो उसको सपोर्ट के लिए एक एक फंड दिया जाता है, रिवॉल्विंग फंड। जनरली क्या होता है, ये आई आई के पी केवाईसी या जो भी एजेंसीज के थ्रू ये रूट होता है, मतलब जो भी एस एच जी, जो भी एजेंसीज, वट एवर एजेंसीज आर प्रमोटिंग टू द एस एच जीज, देन they are this fund will be given to them via routing through them। तो जैसे ही स्टार्ट में इट इज फॉर्म, इट इज अमाउंट, अर्लियर दिस अमाउंट वाज 10K, ओके, नाउ इट हैज बीन रिवाइज्ड, ओके, 10K to 15K was earlier, 10 to 15K was earlier, it has been multiplied by twice, 200%, means now it is 20 to 30K per SHG, okay, per SHG। Now how it will contribute, it will be counted in, it will be counted in their corpus, okay, it will be counted in their corpus। Corpus means on the based of the corpus and their micro credit plan we sanction the loans। corpus और micro credit plan हम अभी आगे चलते हुए पढ़ेंगे, we will be going through। see, panchsutras are important, you need to know। हाँ, okay, see, yeah, wait a minute। This fund helps SHG strengthen and institutional and financial management to build a strong credit history. To qualify SHG means to qualify for this fund, SHG must be active for at least 3 to 6 months, follow the Panch Sutras, regular meetings, regular savings, internal lendings, timely recoveries and maintaining book of records। book of records मतलब अगर आप कहीं ऐसी ब्रांच में पोस्टेड हैं जहां पर एसएचजी के लोन होते हैं तो आपको पता होगा कि ये एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ठीक है। और उनके ऑफिस बियरर्स एक्चुअली ये मेंटेन करते हैं, ऑफिस बियरर्स। दो मेंबर्स होते हैं जो ऑफिस बियरर होते हैं एसएचजी में। वो ये बताते हैं कि भाई इस एसएचजी ने कितना लोन लिया, इसके पास कितना पैसा था, कितने मेंबर्स को कितने पैसे दिए गए, अभी कितने पैसे बचे हैं। एक तरह से ये अपनी भी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, ओके। दे आल्सो मेंटेन दियर accounting, okay। Now community investment support fund, this is also important। why it is important? because this is a quantified facts। ऑलरेडी याद रखो, जब भी कोई फैक्ट क्वांटिफाई कर दिया गया तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड्स कितने हैं, ओके। देखो रिवॉल्विंग फंड 20 to 30 के होता है, 20 to 30 के होता है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड to the extent of
2,50,000, 2.5 lakhs पर SHG ये दिया जाता है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड विल बी प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू द SHGs प्रमोटेड अंडर डे NRLM in all blocks and will be routed through the village level cluster level federations। ठीक है, जैसे IKP हो गया, ठीक है, और अदर मैक्स का भी था, पहले भी बंद हो गया है। ये लोग एजेंसीज थे जो SHG को प्रमोट करते थे, दे वर प्रमोटिंग SHGs। तो उसके थ्रू ये विलेज लेवल और फेडरेशन लेवल SHG के जो फेडरेशंस होते हैं, मतलब जो SHGs को प्रपोर्ट करते हैं। भाई कोई ऐसी एजेंसी भी तो होनी चाहिए ना, बैंक डायरेक्टली SHGs का फॉर्मेशन नहीं करता। Generally, SHGs are formed by promoting the other agencies, and these agencies are also promoted by the governments and even some other private agencies, and they are involved in it. See, government provides community investment fund. Now, community investment fund, it has become 2.5 lakhs, and now what uh, this is called as a 20 revolving fund. Revolving fund is 20 to 30K. See, as this is the revised limit in the exam, it may be asked that what was the earlier limit. तो इसका half कर देना. When you will divide by 2, it will become 10K to 15K. Okay. Now we will be moving onwards and see. ये कि SHG के जो प्रोडक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया हुआ है, इवन एंड स्टोर्स एंड सरस मेला। नाउ दिस में बी आस्क्ड दैट सरस मेला relates to branding of SHG product, selling of SHG, etc. Then you may say that this is related to SHG products. Okay. Now, interest subvention, this is important for SHGs. Interest subvention loan to SHGs. This ओनली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो SHG में तो वुमेन ही हो सकते हैं, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं तो दे में बी, बट इफ दे आर टेकिंग इंटरेस्ट सबवेंशन देन ओनली इट मस्ट बी वुमेन SHG। ओके, सी आपने KCC में देखा हुआ था ना कि इंटरेस्ट सबवेंशन 3 लाख तक है, 3 lakhs तक के लोन में KCC में इंटरेस्ट सबवेंशन है। सिमिलरली इन द SHG loans, if it is up to 3 lakhs, there are interest subvention available. Okay, the interest charged by the bank will be 7%. Subsidy from the government will be 4.5%. In the case of KCC, it is the 4%. Now, the difference means there will be 2.5% will be the effective interest rate. Further, if you want to know, that we have already discussed in the session during the RBI circular discussion, you need to go with this. ये important है, ये याद रखना है। If SHG takes 3 lakhs loan, okay, this is the example I have created to solve, but you may solve it. First calculate 4.5%, 7%, calculate difference. You will able to calculate what is the benefit to SHG. तो 2.5% पे तो भाई कोई लोन नहीं मिलता है। दिस इज रियली बिग, वेरी बिग इंसेंटिव टू SHGs। बट अगर 3 लाख से ऊपर है तो बैंक विल बी MCLR, ओके, और मैक्सिमम ऑफ 10%। MCLR में स्प्रेड भी इंक्लूड करते हैं बैंक्स, तो मैक्सिमम 10%। तो इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन बी चार्ज टू SHG लोन्स, दैट इज द 10%। ओके, होप आप कमेंट करके बताएं कि RBI किस सेक्शन के अंदर
कंट्रोल ओवर एडवांसेस है बैंक के। ओके, नाउ हु विल गेट इंटरेस्ट सब्सिडी? अकाउंट मस्ट बी स्टैंडर्ड, ऐसा ही केसीसी में भी है। Either SHG is there or KCC is there. If account is standard, then monthly interest subvention will be available. Okay. Indian Bank was the nodal bank for 20 to 23. For this year, I didn't or I forgot to quote. You need to know or you may go through this your own. See why Indian Bank is nodal bank, because most of SHGs are in South. आप यूपी में देखोगे तो एसएचजी का कॉन्सेप्ट लगभग जीरो है। तो यूपी में वैसे भी वुमन वर्कफोर्स, वुमन कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ठीक है। बट इन साउदर्न स्टेट दे आर वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव। ओके, नाउ इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम प्रोसेस क्या होता है? देखो, एनआरएलएम के थ्रू यूपी में एक होता है डूडा, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक है। और ठीक है, तो आप जो अर्बन अथॉरिटी के थ्रू लोन देते हैं वो वहां से क्लेम करते हैं, ठीक है। हर क्वार्टर में इसी तरह आपको एसएचजी के एनआरएलएम का भी जो है इंटरेस्ट सबवेंशन भेजना रहता है एवरी क्वार्टर, और ये क्लेम क्वार्टरली आता है। फर्स्ट यू विल चार्ज, देन यू विल रिसीव। एडवांस में ये पेमेंट नहीं आता है। सी, दिस इज इम्पोर्टेंट, केवाईसी फॉर एसएचजी। At the time of account opening of SHG, only two people, two office bearer की KYC sufficient है। But at the time of loan, all members KYC is must. Okay, I will be sharing this PDF so that this opening of SHG and these things you need to study. There are federations also, you can open their accounts. There are the guidelines to open the account. Now what is the important guideline is the eligibility criteria of SHGs to avail loans. Means if SHG is willing to avail loans, then it must be existence for at least 6 months. Existence means 6 month का इससे मतलब नहीं कि बैंक में अकाउंट 6 मंथ से होना चाहिए। देयर इज नथिंग रिलेटेड टू बैंक अकाउंट। वो ग्रुप जो है 6 महीने पहले कम से कम बना होना चाहिए। इफ अगर वो ग्रुप का एक्टिविटी बंद हो गया है, मतलब मेंबर्स एक्टिव नहीं है, तो अगर वो 3 महीने से एक्टिव हो गया है, देन आल्सो द ग्रुप इज एलिजिबल फॉर गेटिंग द फाइनेंस फ्रॉम द बैंक। फर्दर एसएचजी उसको ही लोन मिलेगा जो पंचसूत्र को फॉलो करेंगे। दिस इज वेरी फर्स्ट पेज में हमने पंचसूत्र वी हैव discussed what are the Panchsutras. Okay, SHG should qualify as per grading norms. देखो, नाबार्ड ने एक फॉर्मेट आता है और अभी तो ऑनलाइन ग्रेडिंग होने लगी है, तो उस पे आप ग्रेडिंग करते हो पंचसूत्रा कर रहे हैं कि नहीं, उनकी अपनी सेविंग क्या, इस तरह से ग्रेडिंग होती है, ठीक है। मिनिमम 60 मार्क्स उसको पाना होता है ग्रेड में। 100 की ग्रेडिंग में मिनिमम उसको 60 पाना होता है। लोन एप्लीकेशन ऑल बैंक्स में यूज कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए कि एसएचजीस अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में या कहीं से भी जाते हैं तो दे आर अवेयर्ड ऑफ एंड देयर विल बी ईज ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म्स। ओके, नाउ the loan amount, this is the most important. I have already quoted कि this is the quantified facts.
अगर कोई फैक्ट क्वांटिफाइड है, अगर किसी फैक्ट के बारे में ये बताया है कि भाई ये चीज इतनी होगी, तो दीज फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. नाउ सी, एसएचजीज में आइदर अवेल टर्म लोन और सीसी. एसएचजीज को आप टर्म लोन भी दे सकते हो या सीसीएल दे सकते हो, मतलब वो जब चाहे पैसा निकालें और जब चाहे जमा, इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट. In case of CCL, cash credit limit, banks are advised to sanction minimum loan of 6 lakh each eligibility for a period of 3 years. तो मिनिमम 6 लाख का अगर लोन दे रहे हैं, तो अगर इफ दे आर सैंक्शनिंग द सीसी. नाउ डीपी फॉर द फर्स्ट ईयर. सैंक्शन is the another thing. Sanction and DP are another thing. DP for the first year will be 6 times of the corpus. अगर कॉर्पस उनका 1 लाख है तो 1 का 6 टाइम हुआ तो 6 लाख, और 1.5 लाख विच एवर इज हायर. इफ कॉर्पस इज 0.2 lakh or 0.1 lakh, then 6 times will be 0.6 lakhs, मतलब 60,000 रुपया. In this case, minimum amount of rupees 1.5 lakh for the first year. For the second year है तो इसमें 2 ऐड कर दो, 8 times और 3 lakhs. 8 times of the corpus or 3 lakhs, whichever is higher. Now the DP for the third year period will be minimum of 6 lakhs. Means थर्ड ईयर के लिए आपकी लिमिट 6 लाख ही होगी. ओके, मिनिमम. आपने जो सैंक्शन किया है, अगर 6 लाख किया है, तो थर्ड ईयर तक उनका कॉर्पस, इफ दे आर नॉट हैविंग एनफ कॉर्पस, देन आल्सो फॉर द थर्ड ईयर द अमाउंट ऑफ लोन और सीसीएल लिमिट विल बी 6 lakhs. ओके, डीपी फॉर फोर्थ ईयर विल बी एबो 6 lakhs, मतलब 6 लाख से ज्यादा देना है, और एज पर दियर माइक्रो क्रेडिट प्लान, मतलब जितना एसएचजी को चाहिए उतना दे दो. इन केस ऑफ टर्म लोन, दिस इज 6 टाइम्स और 1.5 लाख, जैसा वो था पहले भी. टर्म लोन 6 टाइम्स और 3 लाख सेकेंड ईयर. थर्ड ईयर दिस इज आल्सो सेम. मींस चाहे टर्म लोन दें चाहे सीसीएल दें, लिमिट विल बी सेम, लिमिट क्राइटेरिया विल बी सेम. ओके, अभी कॉर्पस में क्या क्या आता है, चलो उसको रिवॉल्विंग फंड मिला 30,000. ओके, उनका अपना सेविंग में पैसा हुआ है 1,22,000. ओके, इंटरेस्ट जो रखा हुआ था उसे 10,000 मिला रखा हुआ. ठीक है, जो मेंबर्स ने लोन लिया था. और अदर इनकम या एनजीओ या कहीं और से इन्वेस्टमेंट फंड ऐसा कहाँ से आ गया 30K, तो आपका हो गया 1.8 के, ये पूरा कॉर्पस हो गया. ओके, इन सब को एडिशन करके बनेगा कॉर्पस. क्रेडिट फैसिलिटी टू एसएचजी मेंबर्स मींस even not only to an SHG, you can also provide the credit facility to SHG members as well. Okay, in order to facilitate women SHG members to graduate to entrepreneurs, bank may consider extending loan up to 10 lakhs to individual members of select matured well performing SHGs who are more than 2 years old. ये याद रखना, अगर SHG members को, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन देना है तो एसएचजी मेच्योर होना चाहिए और एटलीस्ट 2 इयर्स पुराना होना चाहिए. ठीक है, विद टाइमली रीपेमेंट होना चाहिए, कोई भी अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए. वन वुमेन इन एवरी एसएचजी, मतलब एक एसएचजी में एक वुमेन को आप 1 लाख का मुद्रा दे सकते हो. ओनली वन वुमेन को. 10 मेंबर्स हैं तो 10 को 10 लाख का लोन और 10 लाख का मुद्रा सबको नहीं मिलेगा. ओनली वन वुमन ऑफ एसएचजी विल गेट दिस. फर्दर
ओडी फैसिलिटी ऑफ ₹5,000 टू एवरी वुमन, मतलब 5,000 का ओडी तो सभी मेंबर्स को मिलेगा, बट जो लोन मिलेगा मुद्रा में वो केवल एक मेंबर्स को मिलेगा, ओनली वन मेंबर। ओके। अच्छा, अब पर्पज ऑफ लोन यूटिलाइजेशन, मतलब जो वो लोग लोन लेंगे वो किस लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो अमाउंट पे डिपेंडेंट है। वो किसी भी पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी यूज कर सकते हैं वो, लेकिन क्या है, अगर लोन 1 लाख से ज्यादा है, मान लो 2 लाख है, तो इसका 50% मतलब 1 लाख इनकम जनरेशन, मतलब कोई काम करने के लिए लगाएंगे जिससे इनको पैसा का इनकम हो, बाकी 1 लाख को पर्सनल कंजम्पशन में ले सकते हैं। ठीक है। अगर लोन 4 लाख से ज्यादा है, ओके, अगर 4 लाख से ज्यादा है तो इसका 75% मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3 लैक्स। अगर 4 लाख से ज्यादा है या 4 लाख है, स्पेशली यू कैन से दैट 4 लैक्स, तो एटलीस्ट 75%। सपोज हियर इज 4 lakhs, then 4 into 3/4 means 3 lakhs will be for income purpose, only 1 lakh will be for consumption purpose. अगर 6 लाख से ज्यादा है, सपोज 8 lakhs या 10 lakhs है, तो देन 85% ऑफ दिस, ओके, इसका 85% हो जाएगा 8.5, 8.5 लाख इनकम के लिए हो गया, और 1.5 lakhs हो गया कंजम्पशन के लिए। ओके। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रीपेमेंट शेड्यूल। फर्स्ट लोन मैक्सिमम 2 से 3 साल में, सेकेंड लोन 3 से 4 साल में, थर्ड लोन जो मिलेगा वो 4 से 5 साल में, एंड नेक्स्ट लोन 5 से 7 साल में। फोर्थ डोज, फोर्थ, अच्छा डोज क्या होता है, मतलब जब फर्स्ट टाइम लोन लेता है कोई एसएचजी तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डोज, सेकेंड टाइम लेता है तो सेकेंड डोज, थर्ड टाइम लेता है तो थर्ड डोज, फोर्थ टाइम लेता है तो फोर्थ डोज। डोज मतलब जब भी आपने इसकी लिमिट बढ़ाई, डीपी बढ़ाई, ज्यादा अमाउंट का सैंक्शन दिया, ये ऐसा नहीं कि ये हर बार फ्रेश एप्लीकेशन देगा। अगर आप इसकी लिमिट डीपी अगले साल बढ़ाते हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ सेकेंड डोज। ओके, इस तरह से आपको करना है, ये याद रखना है। अच्छा, इसमें याद रखने जैसा कुछ नहीं, देखो फर्स्ट लोन 1 से 2, ठीक है, 2 से 3, नहीं 1 से नहीं, फर्स्ट लोन 2 to 3 years, सेकेंड लोन 3 to 4 years, फोर्थ लोन 4 to 5 years, थर्ड लोन 4 to 5, एंड 5 to 7 years। 7 years को अगर आप मंथ में कन्वर्ट करोगे तो यही आएगा, तो आप ईयर वाइज भी अगर याद करना चाहते हो, इफ यू वांट टू लर्न इट ईयर वाइज, देन मे यू आल्सो डू। सिक्योरिटी एंड कोलेटरल मार्जिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2022 के अराउंड एसएचजी 22-23 एसबीआई में ये पूछा गया था इन सीबीओ एग्जाम, व्हाट इज द कोलेटरल मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ अबाउट 10 to 20 lakhs। ओके, सी मैक्सिमम 10 10 lakhs तक तो कोई मार्जिन उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, 10 से 20 में तो मैक्सिमम 10% है। मींस अगर बैंक चाहे तो जीरो भी कर दे, बैंक के ऊपर है, बट मैक्सिमम 10% से ज्यादा मार्जिन नहीं लेंगे। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट कैन बी मैक्सिमम मार्जिन ऑन द लोन्स अप टू 10 lakhs, it will be 0, more than 10 lakhs for SHGs it be 10%. See, for that we have got the CGFMU cover। जब एसएचजी लोन की लिमिट 10 से 20 लाख की गई थी तो उसमें CGFMU का कवर दिया गया था। वी कैन, ये कवर आप एसएचजी में ले सकते हैं।
नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस ये इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर विलफुल डिफॉल्टर ग्रुप में है तो क्या करेंगे। चलो ये ग्रुप है जिसमें ए बी सी ऐसे करके 10 मेंबर्स हैं, जिसमें से बी डिफॉल्टर है। अगर बी डिफॉल्टर है तो बी विल नॉट गेट द लोन। ओके, बाकी ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट इसको एसएचजी की तरह लोन नहीं मिलेगा। अगर पर मेंबर 1 लाख का लोन दिया जा रहा है, इसको कुछ भी लोन नहीं दिया जाएगा, बट ग्रुप में नंबर उतना करने के लिए या ग्रुप में बने रहने के लिए ये रह सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इसके फैमिली का कोई जो है एनपीए किया हो, 2 लेडीज हैं इस फैमिली में, तो फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, फैमिली एज ए यूजुअल, ओके, यूजुअल ट्रीटमेंट करना है। नॉन विलफुल डिफॉल्टर्स मतलब ऐसे डिफॉल्टर जो जिनके पास सच में प्रॉब्लम थी और नहीं थे, तो दे शुड नॉट बी फ्रॉम टेकिंग लोन्स। तो उनको क्या करना है, उनका पुराना लोन आपको रिस्ट्रक्चर कर देना है, रीपेमेंट पीरियड आगे बढ़ा देना है, और उनको फिर से आप फाइनेंस दे सकते हो, प्रोवाइडेड दे आर नॉट विलफुल डिफॉल्टर्स। वैसे विलफुल डिफॉल्टर के लिए आरबीआई की गाइडलाइन 25 लाख है, नेबो है, बट इस केस में इसको 1 लाख ही मिलता है। तो इस केस में विलफुल डिफॉल्ट का जो आइडियल क्राइटेरिया है कि भाई वो बंदा जिस चीज के लिए लोन लिया है उसमें लगाया, लेकिन उसको जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम हुई एंड इट ही वाज और शी वाज नॉट एबल टू पे द लोन, देन शी मस्ट नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग द लोन अगेन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन सच अ केस द previous loan will be restructured in line with the new loan so that he doesn't face any difficulty to repay both the loans. Okay. नाउ डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलो अप, ये आप इसमें से देख लेना, ये कोई जरूरी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलो अप। और इसके की गाइडलाइंस हैं, बैंक मित्रा इसकी क्या है, ये की फैक्ट्स हैं, ये आप इसे देख सकते हो। ये आपका लेक्चर फिनिश हुआ, और इसके बाद हम एक लेक्चर और करेंगे, क्रेडिट CRILC ऑन लार्ज क्रेडिट, आरबीआई गाइडलाइंस ऑन लार्ज क्रेडिट मीन्स सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। अच्छा ये बता दें, ये भाई हमारे रघुराम राजन साहब सितंबर 2013 में जब गवर्नर बने थे, तब उन्होंने ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया था, लेकिन 14 में आ गए हमारे मोदी बाबा, और मोदी बाबा ने इनको कहा कि भाई आप निकल लो, ठीक है। तो चलो आगे बात करते रहेंगे, और अगर अच्छा लगा तो आप इस सेशन को शेयर कर सकते हो, और इफ यू वांट टू टेक एडमिशन, हाँ, देन यू इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें फ्री पीडीएफ अवेलेबल हैं, फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बट प्रिपेयर वेल, होप यू विल गेट योर ड्रीम, एंड whatever wherever possible I will be with you. थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हम इस पे अपना सेशन